الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد نور بھائی اما بعد قابل احترام حضرات علماء اکرام، اسٹیج پہ تشریف فرما ہمارے دین ملت، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، میں حیدرآباد سے آپ کی محبت میں یادگیر تک آیا۔ 2-3 دن سے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں بول بھی نہیں سک رہا ہوں، اور آج بھی میں صرف ہمارے اکابر کا بیان سننے کے لیے آیا تھا، میں بولنے نہیں آیا، کیونکہ کھانسی اتنی ہے کہ زور سے بولا تو پریشان، لیکن شاید آپ کی دعائیں اگر ساتھ رہیں، کچھ آپ کی توجہ رہی تو شاید 2-4 منٹ میں کچھ بول دوں۔ میرے عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، آج ہم جس نسبت پر یہاں جمع ہوئے ہیں، جو مقصد لے کر آئے ہیں، وہ ایک عظیم الشان مقصد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ساری مخلوقات میں ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات بنایا، تو ہماری اشرفیت اور افضلیت کو باقی رکھنے کے لیے اللہ نے نبیوں کا سلسلہ جاری فرمایا، اور اللہ نبی ایسے شخص کو بناتا ہے جو ہر اعتبار سے دنیا میں کامل اور اکمل ہوتا ہے۔ جسمانی اعتبار سے بھی نبی کامل اور اکمل ہے، اور خوبصورتی میں دیکھیں تو نبی اجمل ہے اور نبی مکمل ہے، اور سیرت کے اعتبار سے بھی دیکھیں گے تو نبی مکمل ہوتا ہے اپنی سیرت میں۔ اور ہم نہیں بلکہ پوری دنیا کے وہ مفکرین جن کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی کچھ ہے، وہ مفکرین، وہ تاریخ داں جب لکھنے بیٹھتے ہیں تو ان کی زبان اور قلم یہ کہنے پر مجبور ہے کہ دنیا میں، پوری دنیا میں اگر کوئی ایسی ہستی ہے جس کی زندگی کے کسی بھی لمحے پر کبھی انگلی اٹھائی نہیں جا سکتی، تو وہ بلا شبہ مسلمانوں کے آخری پیغمبر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ یہ ہم نہیں کہتے، یہ مسلمان نہیں کہتے، مسلمان تو نبی کا غلام ہے، مسلمان تو نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، وہ کہے تو کمال نہیں ہے۔ وہ نصارہ، وہ غیر مسلم مفکرین جنہوں نے دنیا کی تاریخ لکھی ہے، دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کو جنہوں نے دیکھا ہے، ان کے اوپر قلم اٹھایا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کوئی ذات محمد رسول اللہ سے ہٹ کر ایسی نہیں جس کے اوپر انگلی اٹھے۔ ہمارے نبی کا یہ مقام اور یہ مرتبہ ہے جس کو اللہ نے اپنا آخری پیغمبر بنا کر بھیجا، اور جس کے صدقے میں اللہ نے اس پوری کائنات کو وجود بخشا۔ ان کو اللہ نے اپنا آخری پیغمبر منتخب کر کے فرمایا، لولاک لما خلقت الافلاک، اے میرے حبیب، اگر آپ کو دنیا میں بھیجنا نہ ہوتا تو میں کائنات پیدا نہیں کرتا۔ میرے آقا کے اوصاف اور کمالات اور سیرت کو ہم گنانے بیٹھیں تو زندگی کی شام ہو جائے گی، آقا کی زندگی کے ایک شعبے کو ہم اجاگر نہیں کر سکتے۔ مجھے مختصر آپ سے ایک بات عرض کرنا ہے کہ صحابہ اکرام جن کا وہ دور جسے دور جاہلیت کے نام سے یاد کرتے ہیں، اس کے اندر ہر طرح کی برائی، ہر طرح کا فتنہ بپا تھا، شراب عام تھا، زنا عام تھا، جوا اور ڈکیتی اور چوری عام تھی، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دینا عام تھا۔ غرض دنیا کی کوئی ایسی بڑی سے بڑی برائی نہیں تھی جو اس زمانے میں ان سے ہوتی تھی، لیکن جب اللہ نے اسی قوم میں انقلاب لانے کا ارادہ فرمایا تو امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو رہبر انسانیت، محسن انسانیت اور رحمت للعالمین بنا کر دنیا میں بھیجا۔ اور وہ صحابہ جو برائیوں کے دلدادہ اور رسیہ تھے، جب آقا نے ان کے سامنے کلمہ پیش کیا تو کلمہ پڑھنے کے بعد ایسے چمٹے کہ برائیاں تو دور کی بات، خونی رشتوں تک کی پرواہ نبی کی غلامی کے آگے ان لوگوں نے نہیں کی۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ہم نبی کی عظمت کو نہیں جانتے، ہم نبی کا مقام نہیں جانتے۔
आज जो ये फितने हमारे अंदर पैदा हो रहे हैं, आज जो ये फितने हमारे अंदर बपा हो रहे हैं, हम इन फितनों को सह रहे हैं, हम इन फितनों को अपने अंदर जज्ब भी कर रहे हैं, हम इन फितनों की हकीकत से वाकिफ नहीं है। लेकिन वो लोग जो नबी की आजमत को जानते थे, जो नबी की गुलामी का हक अदा करने वाले थे, उन लोगों से नबी का रिश्ता तो देखिए। आज हमारा नबी से रिश्ता नाम का रिश्ता है, लेकिन जिनका रिश्ता मजबूत था, सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, एक मर्तबा उनके बेटे सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे एक मर्तबा बाप से अर्ज करने लगे, अब्बा जान फला जंग के मौके पर आप मेरे निशाने पर आ गए थे। बेटे अभी तक इस्लाम नहीं लाए थे, हज़रत अबू बकर मुसलमान थे। जिस वक्त नबी ने कलमा अबू बकर के सामने पेश किया, उसी वक्त आंख बंद करके आपने कलमा पढ़ा और ईमान में आए। आपके साहिबजादे मुसलमान नहीं थे। मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, बेटा जब मुसलमान हो गया तो एक मौके पर अपने बाप से कहता है, अब्बा जान फला जंग में, जंग ओहद में या किसी में आप मेरे निशाने पे आ गए थे। मैं चाहता तो एक ही वार में आपको खत्म कर देता, मगर ये सोच के खामोश रह गया कि आप मेरे बाप। ये बेटा कहता है कि मेरे निशाने पे आए थे, एक तीर मारता आप खत्म हो जाते। पलटकर बाप जवाब देता है बेटे को, बेटा तू मेरे निशाने पे नहीं आया, अगर तू मेरे निशाने पे आ जाता तो मैं ये नहीं देखता कि तू बेटा है, मैं ये देखता कि तू रसूलुल्लाह का बागी है और मार देता तुझे। मेरे पास रिश्ता खून का नहीं है, मेरे पास रिश्ता नबी की गुलामी का है, नबी की दीन का है, नबी की शरीयत का है। मैं उस रिश्ते के आगे, मैं उस रिश्ते की गुलामी को कबूल कर चुका हूं। अगर तू मुझे दिख जाता, मैं फौरन उड़ा देता कि मेरा रिश्ता नबी से है, तू नबी का दुश्मन है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों और बुजुर्गों, ये रिश्ता बड़ा नाजुक रिश्ता है। अल्लाह करे इस रिश्ते की नज़ाकत हमारी समझ में आ जाए कि हम किस नबी के गुलाम हैं, किस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं। फितने, जैसा मुफ्ती महमूद सुबैर साहब ने फरमाया कि फितने आका के ज़माने से ही नमूदार होने लगे थे। बड़े फितने हुए हैं। आज भी ये फितना आपके यादगीर के अंदर है, बहुत बड़ा फितना है। लेकिन हमारी बदनसीबी है, हमारी बदकिस्मती है कि हम इसको फितना नहीं समझते, हम इसको एक सानवी दर्जा देते हैं। जबकि वहां अबू बकर ने खून के रिश्ते की परवाह नहीं की थी नबी के रिश्ते के आगे। और आज हमारा हाल क्या है? हम अपने गिरेबान में झांक के सोचें और देखें। आज हम पर इल्जाम लगाया जाता है कि ये हमें लड़वाने आते हैं, ये इख्तिलाफ पैदा करने यादगीर में आते हैं आंध्र प्रदेश से, ये फितना पैदा करने के लिए आते हैं। आज हम पर यह इल्जाम है। मैं ये कहता हूँ, हुकूमत से भी कहता हूँ, पुलिस वालों से भी कहता हूँ और कोर्ट से भी कहता हूँ कि हमारा और उनका इख्तिलाफ इसलिए नहीं है कि जमहूरी मुल्क में हर एक को आज़ादी है, हम भी कायल हैं आज़ादी के। हमारा इख्तिलाफ ये है कि दुनिया में बेशुमार धर्म और मजहब के मानने वाले हैं। सिख है, क्रिश्चियन है अपनी जगह, यहूदी है अपनी जगह, गैर मुस्लिम है अपनी जगह, सिख है अपनी जगह, मजूसी है अपनी जगह। हर धर्म, हर मजहब अपने मजहब का प्रचार करता है। हम ये कहते हैं कि कादियानी भी एक मजहब है, इस्लाम के मुकाबले में एक मजहब है, उसका इस्लाम से ताल्लुक नहीं है। हमारा इख्तिलाफ यह है कि कादियानी न मुसलमान था न है, और जब तक कादियानी रहेगा वो मुसलमान नहीं होगा। हमें ये अपना इस्लाम साबित करके बता दे, हम मान लेंगे। आज उनको मजहबी आजादी मिलती है, वो आजाद है, उनको हक कानून ने दिया है, लेकिन वो अपने मजहब को इस्लाम का नाम अगर देंगे तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम मरते दम तक उसका मुकाबला करें। हम आप करो, बहुत से मजहब वाले हैं। अगर मैं किसी गुरुद्वारे में जाके बैठ जाऊं, टोपी दाढ़ी रखे कि मैं यहां का मुतवल्ली हूं, आप बर्दाश्त करेंगे? कोई पंडित आके अगर मस्जिद में बैठ जाए और ये बोले कि मैं मस्जिद का मुतवल्ली हूं, मेरी मर्जी चलेगी, बर्दाश्त करेगा कोई? कोई सरदार जी जाके मंदिर का घंटा बजाए कि मैं पुजारी हूं यहां का रखवाला,
कोई नहीं बर्दाश्त कर सकता। क्यों? उनका धर्म अलग है, उनकी इबादत की जगह अलग है, उनकी इबादत का तरीका अलग है, हमारी इबादत का तरीका अलग है, हमारी मस्जिदें अलग है, ये दुनिया जानती है। लेकिन ये कादियानियत, इस वक्त जो फितना हमारे सामने है, हमारी बदनसीबी ये है कि ये मुसलमानों को, भोले भाले मुसलमानों को फरेब देकर, लालच देकर, अपने आप को मुसलमान साबित करके इस्लाम के नाम पर हमारी बस्तियों में, हमारे घरों में घुसकर हमारे भोले भाले मुसलमानों के अकायद को बदल दे, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिन्होंने अपना मजहब अलग कर लें, भाई हम कादियानी मजहब वाले हैं, हमको तस्लीम है, हमसे हम आपको कोई कुछ नहीं करेंगे, हम कभी नहीं छेड़ेंगे। आप ये बोलो हमारा मजहब अलग है, हम कादियान, अगर मुसलमान कहोगे तो रसूलुल्लाह के गुलाम अभी जिंदा हैं, क़यामत तक जिंदा रहेंगे। हम मुकाबला करेंगे, हम कोर्ट में जाएंगे, हम उनको चैलेंज करते हैं कि आओ अपना इस्लाम पेश करो, हम तुम्हारा कुफ्र पेश कर देंगे। और ये कोई नई बात नहीं, दुनिया की कितनी अदालतों ने इनको गैर मुस्लिम करार दिया है। साउथ अफ्रीका की अदालत का फैसला उठाकर देखिए, इनको काफिर करार दिया गया। पाकिस्तान की असेंबली में करारदाद मंजूर हुई है। आपके कर्नाटक के हुबली के अंदर, हुबली की कोर्ट के अंदर बहुत दिनों की बहस के बाद करारदाद मंजूर हुई है कि कादियानी मुसलमान नहीं है। हमारा इख्तिलाफ सिर्फ ये है कि ये अपने आप को मुसलमान कहना छोड़ दें, दूसरे दिन से हम उनकी तरफ आंख उठाकर देखना बंद करें। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, वक्त कम है, हमारे वो अकाबिर जिनको हमें सुनना है वो तशरीफ फरमा है। मेरी सेहत भी साथ नहीं दे रही, दुआ फरमाए। मुझे इंशाअल्लाह फिर किसी मौके पे आपसे अर्ज करूंगा। गुजारिश करके जाता हूँ कि एक अबू बकर सिद्दीक का वो मिजाज, वो नमूना, वो सबक हमेशा अपने गिरेबान में, अपने दिल में बिठा कर रखना कि सिद्दीक अकबर ने अपने खूनी बेटे से कहा था कि नबी के रिश्ते से आगे कोई रिश्ता नहीं है, किसी रिश्ते की हैसियत नहीं है। बाप बेटे को ये कह सकता है, लेकिन मुझे अफसोस के साथ और माजरत के साथ ये कहना पड़ता है कि यादगीर के अंदर, यादगीर शहर के अंदर कुछ मुसलमान ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो उनसे ताल्लुकात को निभाने की फिक्र में रहते हैं कि अरे साहब क्या करें, उनके ताल्लुकात निभाना पड़ता, उनकी दावतों में जाना पड़ता, अरे साहब क्या करें, उनकी मजलिस में जाना पड़ता, क्या करें साहब, उनसे लेन देन का मसला है करना पड़ता, उनसे कारोबारी मसाइल है हल करना पड़ता, उनसे दोस्ती है अलग सलग करना पड़ता। बाप बेटे की परवाह नहीं कर सकता, लेकिन तू कैसा नबी का गुलाम है कि तू नबी का कलमा पढ़कर और नबी के दुश्मन से हाथ भी मिलाता, उसके घर पे खाने के दस्तरखान पे उसके साथ बैठकर खाते हुए तुझे शर्म नहीं आती कि कलमा नबी का पढ़ता है, खाना बागी के साथ खाता है। ये ईमान है कि निफाक है? ये मुनाफिकत है इस्लाम में। मेरे दोस्तों, इस्लाम में शराब पीना बहुत बड़ा जुर्म है, जुआ खेलना बहुत बड़ा जुर्म है, चोरी और डकैती बहुत बड़ा जुर्म है, जिना जुर्म है, झूठ जुर्म है और गीबत जुर्म है, मुसलमान को तकलीफ देना जुर्म है। मैं कसम खा सकता हूं कि दुनिया में अगर कोई आदमी नबी का कलमा पढ़कर नबी के दुश्मन से ताल्लुक रखता है, पूरी कायनात में उससे बड़ा मुजरिम कोई नहीं। अब आपके हाथ में फैसला है, आप फैसला करें। वो लोग जो उन बदनसीबों से अपना ताल्लुक इस्तेवार रखते हैं, ऐ गयूर मुसलमानों यादगीर के, तुम्हें उस नबी का वास्ता देकर जाता हूं कि तुम्हारे कहने के बाद भी अगर कोई अपना रिश्ता उनसे नहीं तोड़ता तो नबी के नाम पर उनसे अपना रिश्ता तोड़ो। मोहब्बत बेटे से रिश्ता तोड़ने के लिए तैयार है, खूनी बेटा है, सगा बेटा, बाप तैयार है कि नबी के रिश्ते के आगे कुछ नहीं है। तो हमारी तुम्हारी तो दोस्ती है। मुसलमानों, यादगीर वालों, ये पैगाम है, मेरा पैगाम में मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे तुम्हें बाइकाट करना है। जब तक वो अपने आप को मुसलमान कहें, इस्लाम का लेबल लगाकर हमारे
बीच में आएंगे जब तक उनका बाइकाट करना है। और अगर हमारा कोई बदनसीब मुसलमान उनसे ताल्लुक निभाता है, उनके साथ उठता बैठता है, अल्लाह के नबी का वास्ता, अल्लाह का वास्ता, तुम उसका बाइकाट कर दो। ये मत देखो कि ये मेरा भाई है, कि बाप है, कि चचा है, कि फूफा है, कि खालू है, कि मामू है। अबू बकर ने ये नहीं देखा कि मेरा ये कौन है, सगा बेटा था। तो हम अबू बकर के नाम लेवा हैं। हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम कल क़यामत में हौज़ कौसर पर अपने आका को चेहरा दिखा सकें। इस काबिल हम दुनिया से जाएं। अल्लाह कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।